Hi students, today in this video we will solve all the sums related to exercise 2.1. In our previous video, we have studied the basic type of pairs of angles formed by two parallel lines with the transversal. That is pair of corresponding angles, pair of alternate angles, pair of interior angles, angles forming linear pair and vertically opposite angles. We have revised in our previous video. Now based on that, we will solve the sums which are in exercise 2.1. Now see here, this figure. Question number 1. Here, what information is given? That these two lines are parallel. RP is parallel to MH and DK is a transversal. Okay. Here one information is given that DHP is 85 degree. You have to find angle RHD. Where it is? Here. RHD. We will go one by one. First we will concentrate on RHD. अब RHD देखो कहाँ पर है? RHD. अब यहाँ अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर बनता है लीनियर पेयर. और प्रॉपर्टी क्या है लीनियर पेयर की? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है they both are supplementary. What is the meaning of supplementary? Angle RHD plus angle DHP is 180 degree. Here, student, you have to write the reason. अगर रीजन नहीं लिखोगे, रीजन लिखने की एक आदत डालो. अगर रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. तो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, यू विल नॉट राइट इन शॉर्ट. एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर. ओके, यू विल नॉट राइट इन शॉर्ट. अब RHD वी डोंट नो, सो मेजर एंगल RHD plus 85 degree is 180 degree. You will bring this 85 degree this side. The sign will change. Cancel this. The sign will change. Therefore, angle RHD is 180 minus 85 degree. Okay. So, it will be, therefore, measure angle RHD is how much? 180 minus 85 is 95 degree. We got this 95 degree. Okay. Now next is angle PH. Angle PHG. Now where is angle PHG? See, PHG means here. They are talking about this angle. Now already we have studied one more type of angle. See here. What is the relation between RHD and PHG? They are vertically opposite angles. And what ये जो एंगल होते हैं, ये जो दो इंटरसेक्टिंग यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ये दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली. तो ये भी देखो वर्टिकली अपोजिट है. तो हाउ यू विल राइट? एंगल PHG is equal to angle RHD. Reason vertically opposite angles. Student, you will not write in short. You have to write in full form. So what is the measure of angle PHG? Therefore, measure angle PHG is also 95 degree. So here we got 95 degree. Okay. Next, HGS. Now where is HGS? See here, HGS means they are talking about this angle. अब ये एंगल दो तरीके से मिल सकता है. कैसे? तो डायरेक्टली यहां पर अगर हम लोग शेप देखेंगे, देखो DHP यानी ये ऐसा और HGS यानी ये ऐसा. तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं? करस्पॉन्डिंग. So these two angles are corresponding. अगर ये नहीं समझ रहा है तो आप देखो यहां पर बॉक्स बन रहा है.
PHGS, PHGHGS। तो बॉक्स कौन से एंगल बनाता है? इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों को मिला के भी 180 बनता है, और नहीं ऐसा दोनों टाइम। एक्चुअली आई एम शोइंग यू बोथ द टाइम। अगर आपको ये क्लिक होता है तो ये भी करेक्ट है, और अगर आपको करस्पॉन्डिंग क्लिक होता है तो वो भी करेक्ट है। दोनों में से आप इंटीरियर भी कर सकते हो और करस्पॉन्डिंग भी। सो HGS, this angle is congruent to DHP. See here, L shape इस तरह आ रहा है, L shape. So is equal to angle DHP. Therefore, angle HGS is how much? 85 degree. I'm sorry, here we have not written the reason. Reason is very important. Pairs of corresponding angles. Reason is very important, students. Okay. Next, MGK. Now here you got how much? 85. Now they are talking about this angle. Now here, see which type of angle is, what is the relation between these two angles? Vertically opposite. Very important, very clear angles are here. The intersecting के यहाँ पे जो दो angles बनते हैं उसको हम vertically opposite बोलते हैं। तो MGK के साथ कौन सा congruent है? HGS. रीजन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जहां जहां टीचर ने शॉर्ट लिखे वो आप शॉर्ट नहीं लिखोगे, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। तो MGK का मेजरमेंट क्या होगा? MGK इज हाउ मच? 85। ओके, अभी मेरी तरफ से आपको दो और एंगल फाइंड आउट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। एक एंगल है HGM, एंगल HGM, और दूसरा है SGK, SGK, और RHG, एंगल RHG। ये तीन एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं ऑन योर ओन। You will find it out so that you will be perfect in all the three types of angles. Okay, student? I am sure that you have understood question number 1. Let us move to question number 2. Now, student, this is question number 2. Now, if you will see the question, here P is parallel to Q. और L और M पैरेलल नहीं है, तो आप ये दो को पैरेलल मत समझो, ये दोनों ट्रांसवर्सल है। तो जो भी एंगल बनेगा ये दो पैरेलल लाइन के बीच में देखो। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट मेजर एंगल ABCD, एंड दीज टू इंफॉर्मेशंस आर गिवन, 110 डिग्री एंड 115 डिग्री। ओके, सो व्हाट विल बी A? स्टूडेंट्स, एंगल A क्या होगा? अगर आप देखोगे तो यहां पर एंगल A लीनियर पैर बना रहा है। क्या बना रहा है? लीनियर पैर। तो आप लीनियर पैर में क्या होता है? 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस 110 डिग्री इज 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पैर। Okay, therefore angle A is 180 minus 110, therefore angle A is 70 degree. चलो, हमारा A मिल गया, A हमको मिला 70 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट्स D, आपको D भी मिलेगा। D कैसा मिलेगा? D भी आपको लीनियर पैर से मिलेगा। देखो, जहां जहां पहले इजी मेथड हो जाता है आप उसको क्लियर कर दो। D, तो दिस इज फर्स्ट A, सेकेंड इज D, हम फाइंड आउट करेंगे। D प्लस 115 डिग्री इज 180 डिग्री। सेम रीजन, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पैर, देयरफॉर एंगल D is
180 degree minus 115 degree. Therefore, angle D is 65 degree. ओके, चलो हमको ये भी मिल गया, डी भी मिल गया. अब बी और सी कैसे मिलेगा? तो बी और सी अगर देखोगे, सी दीज टू आर पैरेलल लाइंस. ये दो पे कॉन्सेंट्रेट करो. अगर हम ये इस तरह और ये ट्रांसवर्सल है, यहां पर सी है और यहां पर है 115 डिग्री. तो अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर एल शेप बन रहा है, एल शेप इस तरह. तो कौन से एंगल्स हो जाएंगे? करस्पॉन्ड. स्टूडेंट्स, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल नहीं है. तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट मत करो, इन दोनों पे कंसंट्रेट करो. तो देखो, जब इन दोनों से कौन से एंगल बन रहा है यहाँ पर? तो करस्पॉन्डिंग. सो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 115 डिग्री. इट इज इक्वल टू 115 डिग्री. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल. तो आप लिखोगे यहाँ पर, आपको ये लिखना पड़ेगा, line P is parallel to line Q and M is the transversal. आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांसवर्सल आपने कौन सा सिलेक्ट किए. सो M is the transversal. ओके, M अगर ट्रांसवर्सल है, therefore एंगल C is 115 डिग्री. उसका रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, तो आपको सी मिल गया 115 डिग्री. अब बी कैसे मिलेगा? बी आपको, अगर हम अपनी तरफ से इसको एक्स लें, अपनी तरफ से एक्स लेंगे तो ए और एक्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. रीजन ये देखो, यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये ए है और ये एक्स है. यहां पे ट्रांसवर्सल क्या होगा? एल. तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड एल इज द ट्रांसवर्सल. एल इज द ट्रांसवर्सल. Therefore, angle A is equal to angle X. Reason? Corresponding angle. Corresponding angle. तो आपको X की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमको A की वैल्यू कितनी मिली थी? यहाँ पे 70 डिग्री. तो X की वैल्यू कितनी मिलेगी? 70 डिग्री. अब X और B में क्या रिलेशन है? एक्स और बी में वर्टिकली अपोजिट का रिलेशन है. वो फिफ्थ होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी. रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल. देयरफॉर एंगल बी इज हाउ मच? 70 degree. So this way you will approach students to find out the measure of different angles when two parallel lines and transversals are given in question number 2. Okay? Let us move to question number 3. Students, this is question number 3, but according to the new syllabus, new portion, question number 3 is reduced in your portion. So right now we will not solve it. We will wait for it. We will move to question number 4. Okay? Now student, this question. Now listen very carefully. See each and every step. What is given and what we have to prove. Okay. Now here the question is, sides of PQR and XYZ. Now which are the sides? We will go systematically. Which are the sides of PQR and XYZ parallel to each other? So side PQ is parallel to side XY. Okay, and side YZ parallel to side QR. इन दोनों का रीजन क्या लिखोगे? गिवन. ओके, नेक्स्ट चलो हम इसको एक्सटेंड करें.
एक्स वाई को हम एक्सटेंड करेंगे, ले लो एम, इसको कंसिडर दिस एम। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? कंस्ट्रक्शन में लिखोगे एक्सटेंड साइड एक्स वाई intersecting side QR at M such that X dash Y dash M means they are collinear. Okay, this is our first part. Next is how to prove. You have to prove. To prove is what? To prove angle PQR means this angle is congruent to angle XYZ means this angle. You have to prove. Proof. We'll go systematically. We will choose first this. YZ parallel to QR. Side YZ parallel to side QR. अगर ये पैरेलल है तो XM ray MX will be your, this you don't extend, ray MX is transverse. स्टूडेंट्स, अगर ये तुम्हारा YZ है, सी ये YZ है और ये है QR, ओके, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्स है। तो यहां पे देखो एल शेप बन रहा है, एल शेप। तो कौन सा एंगल दिमाग में आता है? करस्पॉन्डिंग। एक ये और एक ये एंगल। कौन से दो एंगल? एंगल एक्स वाई जेड और एंगल वाई एम आर। एंगल वाई एम आर, ओके। देयरफॉर, नहीं, यहां पर आप लिखोगे, हाँ लिखे ना, ट्रांसवर्सल एंगल एक्स वाई जेड congruent to angle YMR. Reason? Corresponding angle. Equation number 1. This is your equation number 1. ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, पैरेलल साइड चेंज कर। अब हम लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। अब एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, since it is collinear, we can write that is XM parallel to PQ. Okay? अब हमारा ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा QR। रे QR is the transverse. Okay? Sorry. QR is the transverse. अगर आप इस तरह देखोगे, अब आप इस तरह देखो, RMX और ये RQP। तो देखो यहां पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है एल शेप, दिस टू एंगल। तो कौन से दो एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए? कौन से दो एंगल हो गए? RMX और RQP। या फिर इस तरह बोलो आप, PQR और XMR। एंगल PQR congruent to angle XMR, reason corresponding
angles. Since x और y कोलिनियर है, तो हम XMR की जगह दैट इज YMR लिख सकते हैं, या YMR की जगह XMR लिख सकते हैं. जस्ट सिर्फ एक बात याद रखना स्टूडेंट, बीच का जो एंगल होता है वो इंपॉर्टेंट है. ये दो साइड के आप एक्सटेंड कर सकते हो अगर वो कोलिनियर है तो. कोलिनियर है तो हम उसकी जगह y की जगह x लिख सकते हैं, लेकिन m को चेंज नहीं करना बिकॉज m इज द मेन एंगल. ओके, तो PQR YMR रीजन x डैश y डैश n ऑल द थ्री आर कोलिनियर. अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखोगे तो YMR कॉमन है, तो फ्रॉम आई एम राइटिंग हियर, from equation 1 and 2, angle PQR is congruent to angle XYZ. It's proved. कैसे प्रूव हुआ? Let us revise. First we picked these two sides. ये देखो यहाँ पर YZ और QR. ओके, और हमारा ट्रांसवर्सल क्या था? ये लाइन थी. तो यहाँ पे देखो कौन से दो एंगल बन रहे? XYZ और XMR. आप इसको XMR भी बता सकते हैं. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल. अब हमारी साइड चेंज हुई कौन सी? ये और ये. XY की जगह XM ले सकते हो बिकॉज इट इज कोलिनियर. XM और PQ, और ट्रांसवर्सल क्या है? QR. तो यहाँ पे भी देखो L शेप बना, करस्पॉन्डिंग एंगल. तो दोनों इसमें कॉमन कौन सा एंगल है? YMR. So from equation 1 and 2, these two angles are common. So we have proved question number 4. Okay, student, hope so that you have understood. Next, we will move to the next question. That is question number 5. Here see students, what is the information given? Line AB parallel to CD and PQ is the transversal, and you have to find out these angles. Okay, students, always solution में कभी भी आपको पहला चीज सॉल्यूशन में मेंशन करनी होगी. क्या सॉल्यूशन में मेंशन करोगे? कौन सी लाइन पैरेलल है? जो क्वेश्चन में है वो फिर से रिपीट करोगे. AB is parallel to CD, और कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है. PQ is the ट्रांसवर्सल. ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं. ART, अब फिगर में देखो ART कहाँ पे? ART ये ART. अगर आप फिगर देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है लीनियर पेयर. एंगल ART प्लस एंगल BRT is how much? 180 degree. रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर. ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ART plus 105 degree is 180 degree. Therefore, angle ART is how much? 180 minus 105, that is 75 degree. So we got this 75 degree. CTQ. Now students, these two lines are parallel. अगर हम इस तरह देखेंगे तो ये उल्टा मीन्स रिवर्स में L बन रहा है. देखो ऐसा. This and these two angles are corresponding angles. So which two angles are corresponding? Angle CTQ and angle ART. Angle CTQ is congruent to angle ART. Reason? Corresponding
एंगल्स। तो आपको CTQ की वैल्यू कितनी मिलेगी? देयरफॉर एंगल CTQ इज हाउ मच? 75 डिग्री। ओके, नाउ DTQ। अब DTQ कहां पर है? ये DTQ दो मेथड से मिलेगा आपको, जो आपको इजी लगे। एक तो DTQ और BRT, ये दोनों करस्पॉन्डिंग बन रहे, जैसे ये दोनों करस्पॉन्डिंग है वैसे ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। ये भी एक मेथड है और एक मेथड है लीनियर पेयर। आपको जो मेथड फॉलो करना है आप कर सकते हैं। सो DTQ इज इक्वल टू एंगल BRT, रीजन corresponding angle, therefore angle DTQ is how much? 105 degree. Okay, next PRB. Where is PRB? Okay, PRB तो बहुत इजी है। अगर आप देखोगे इन दोनों को तो which type of angles? Vertically opposite angles. So angle PRB is congruent to angle ART, vertically opposite angles. Therefore angle PRB is how much? 75. अब हमारी तरफ से आपको दो एंगल फाइंड आउट करना है। जो एंगल बोल रहे हैं वो पहला है एंगल PRA, सेकेंड एंगल RTC, थर्ड एंगल RTD। आपको ये तीन एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। Just go through the question, go through the explanation. Our exercise 2.1 is over. Hope so that you have understood. Okay, in our next video we will further do the other exercise. Till then, complete your work. Okay, students, thank you.